I didn't share this. हाँ एक बार चेक कर लिया करो कि मेरी रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं. Sometimes I tend to forget. Motion in straight line, kinematics. The first part of the kinematics in 11th syllabus, we did the linear motion. We did questions like finding the instantaneous speed, instantaneous velocity, average velocity, instantaneous velocity, and average instantaneous acceleration and average acceleration. And we did in the two different terms. One was in terms of the speed, another was if the equation is known. So to summarize it, instantaneous velocity is dx by dt. That is the rate of change of position with time. This is instantaneous. For average, doesn't matter what is the equation, what is the path. We just need to find the final position x2 minus initial position x1 divided by t2 minus t1. This is the average velocity. Right? Okay. Similarly, acceleration was dv by dt, and instantaneous acceleration is dv by dt. We can also find all of these using the graph, and for that there is a separate class and separate dpp. Instantaneous acceleration and similarly average acceleration. Average acceleration will be v2 minus v1 divided by t2 minus t1. अभी हम equation based questions कर रहे हैं. Equations या तो given होंगी question में, or we have to form those equations based on the information. This is for the differentiation part, and one more equation we derive for the acceleration when velocity is given in terms of position. Time के respect में निकालना है तो dv by dt, and we did one more equation calculation by multiplying dx and correct. So it will be the instantaneous acceleration is a is v into dv by dx. So the difference in these two equations is if velocity is given as function of time, तो हम उसको t में differentiate करके calculate करेंगे. If it is given as the velocity of position, then we will do v into dv by dx. Sir, I didn't get how you got the formula for acceleration as v into dv by dx. Okay, no problem. Let's do it again. Acceleration था rate of change of velocity with time. A is dv by dt. अब इसमें से dt को हटाना है हमें और x लाना है. So what we did, small difference displacement dx, we multiplied and divide. These two are same thing. Yes, sir. Multiply by dx, divide by dx. Radhika, is the same thing. Yes, sir. Now dx by dt is what? Instantaneous velocity. Instantaneous velocity. So that becomes v into dv by dx. Okay. So the equation are representing the same things. The only सर जो difference आपने अभी is सर एक्सेलरेशन वाला लिखा सर वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेरिवेशन है. सब इंस्टेंटेनियस ही है. कार्तिकेय, किसने बोला अभी? कार्तिकेय है ना? नहीं, आयुष. नहीं सर मैंने नहीं बोला. गोविंद सर. अच्छा गोविंद. ओके गोविंद. अच्छा, आप लोगों में से किसी को अगर इंटीग्रेटेड स्कूल में, डमी स्कूल में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो बता देना. कुछ लोगों ने एडमिशन कराया है अभी. इफ यू आर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट, आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड टेक, बट इफ एनीवन, सम पेरेंट्स कॉल्ड रिगार्डिंग दैट, so I can provide you the detail and the schools also if you want to take out of the context, not from the chapter, but there is another information, piece of information. Yes, चलो वो come back. So ये सारी इक्वेशन है इंस्टेंटेनियस. हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाला, साथ साथ एवरेज वेलोसिटी के लिए चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन. अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में दो अलग अलग केसेस किए हैं. एक तो टाइम के रेस्पेक्ट में. So particle started at t is equal to 0 and such that
such that its velocity is changing with time. तो ये time पे भी change हो रहा है और साथ साथ because of motion, its motion or its position is also changing. So the same particle velocity is given in two different or may be given in two different variables. It may be in time, it may be in position. So suppose if velocity of a particle at time t, velocity of particle at time t is given as शायद हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे, just for recap again, is given as v is equal to t square minus 2t plus 1. Find the velocity at time t is equal to 1 second or t is equal to 2 seconds. So just simple that we have to find acceleration. Acceleration is, if it is written acceleration, that simply means it is instantaneous only. You don't need to write. For average, you need to specify that it is average. Right? It is the average acceleration. So instant acceleration will be d by dt of t square minus 2t plus 1. That becomes 2t minus 2. I hope अभी तक differentiation शायद आ गया है सभी को. And we have to put at time t is equal to 2 seconds. So at time t is equal to 2 seconds, it will be 4 minus 2, that is 2 meter per second square. This was when the equation was given in terms of t, we differentiated with respect to t, and we used that definition of acceleration as dv by dt. Second case, if the velocity of the same particle is given in terms of its position coordinate. So when it reached point P, let's say, its velocity is also changing as per position, and that velocity is given now in terms of x coordinate. So if velocity of a particle at position x is given as v is equal to x square minus 2x plus 1, find acceleration at x equals to 2 meter. When this particle is at x equals to 2 meter, you have to find सर पहले वाला सर जो पहले वाला क्वेश्चन उसके अंदर d upon dt into जो इक्वेशन जो थी सर वो पॉलिनोमियल था सर, उसके बाद सर तो a is equal to 2t minus 2 सर वो कैसे आ गया अचानक से? डिफरेंशिएट कर दिया यार, अचानक क्या हुआ? डिफरेंशिएशन क्या होता है x to the power n का? गोविंद ओके सर समझ आ गया. नहीं बताओ, फॉर्मूला ऐसे नहीं बच सकते. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power n? सर मैंने डिफरेंशिएशन अभी एक्चुअली रिवाइज नहीं किया, मैं डायमेंशनल एनालिसिस वाले पे लगा हूं अभी कुछ दिन से. अरे बेटा ऐसे नहीं करना है, मैंने डे 1 पे बताया है, 4-5 बार बताया है, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करना है. पुराना बैकलॉग के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगाना होगा. डिफरेंशिएशन हर जगह हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन भी यूज होगा. सो इफ इट इज नॉट क्लियर तो मैंने डिफरेंशिएशन पे और फोकस करो. मैंने डिफरेंशिएशन की एक वर्कशीट इसीलिए की है, आई हैव गिवन दैट वन वर्कशीट इन द ग्रुप, और उसको हम फ्राइडे डिस्कस करेंगे. इफ यू वांट हम क्वेश्चन कुछ अभी भी कर सकते हैं, बट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इज बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर. अगर उसमें 1% भी डाउट है तो इस चैप्टर में क्वेश्चंस सही नहीं होंगे. देयर विल बी एरर्स इन दैट केस. समझ गए? सो डिफरेंशिएशन x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या था? n x रेज़ टू पावर n माइनस 1 x स्क्वायर का 2x. पढ़ने का तरीका थोड़ा स्मार्ट चाहिए. अब दैट्स वो मेथड चला गया, कंपाइल होता जा रहा है, इकट्ठा करते जा रहे हैं. वी विल सिट वन डे एंड वी विल मग ऑल ऑफ इट. फिजिक्स में वो मेथड बिल्कुल नहीं चलता. इट्स अ कंटीन्यूअस लर्निंग एंड कंटीन्यूअस एप्लीकेशन. जो हमने लास्ट क्लास में सीखा है वो हमें इस क्लास में अप्लाई करना है, एंड दैट इज व्हाई between the two classes you are supposed to revise class notes and solve all the examples on your own. That is the minimum, bare minimum requirement if you want. फिर होगा कि सर समझ नहीं आ रहा है. This language, the language of physics, is very 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 easy only when you keep track with it. Okay, so differentiation. Okay,
अभी और भी बहुत सारे लोगों को शायद डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है, एपी सर ने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, ही विल टेक इट अगेन, उसके बाद फिर से अगर जरूरत पड़ेगी देन आई विल टेक वन मोर क्लास। बट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से आप बच नहीं सकते, अगर आप बचना चाहते हैं तो फिजिक्स में फिर आप अच्छे मार्क्स को छोड़ दो, देयर इज नो चांस। Almost in every chapter we'll be using these two things. Unfortunately आपने 9-10 तक इसका डी भी नहीं सुना था, और 11th में आते ही सेकंड चैप्टर से इट इज गोइंग टू बी यूज्ड एक्सटेंसिवली, और मैथ्स में भी, मैथ्स होते हुए भी अभी आपने मैथ्स में डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा होगा, आई एम 100% श्योर। ठीक है, तो मिस्टर गोविंद बाकी आगे का पीछे का होल्ड करके पॉज करके आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और हमने ग्राफ की भी क्लास की थी, एक ट्रिग्नोमेट्री की करेंगे बीच में, वी विल डू ट्रिग्नोमेट्री आल्सो, बट जितना हमने मैथ्स में पढ़ा है उसको बार बार आपको रिवाइज करना है, क्योंकि वो आपके लिए नया है और उसको क्विकली सीखना है, बिकॉज यू नीड टू अप्लाई दैट। अभी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं तो फिर आधी तो हवा में जाएगी। एवरी डे यू हैव टू रिवाइज द नोट्स, चाहे वो मेरे हों, चाहे स्कूल के हों, चाहे कहीं के हों, XYZ। अगर आपको उस क्लास का मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए, before the next class you have to solve all the questions taken as a class example on your own without seeing the solution। तब हमें पता पड़ता है हमने सीखा भी कुछ कि नहीं सीखा, बस खाली बैठ के क्लास की है। ठीक है, थोड़ा मतलब सडनली लाइफ चेंज हो गई है 11th में, बट वी कैंट हेल्प इट। टी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला लगाया, n की वैल्यू 2 थी, आ गया 2 टाइम्स t, इधर 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये जादू से नहीं आया, ये डिफरेंशिएशन से। ऐसे ही वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x इज गिवन, एक तरीका हम छोड़ दें, इजी क्वेश्चन करें, खुश रहो तुम भी खुश रहो हम भी खुश रहे, बट दैट्स नॉट द राइट वे, दैट्स नॉट द करेक्ट, है ना गोविंद? यू हैव टू फेस इट, फेस द फियर। भागने से काम थोड़ी चलता, कब तक भागोगे? x square minus 2x plus 1, this was velocity, and we will multiply with x square minus 2x plus 1। थोड़ा सा टफ है, उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम उसको अभी छोड़ दें, बाद में जब जरूरत पड़ेगी तभी पढ़ेंगे। यस, इसको डिफरेंशिएट करें, क्योंकि अब एक्सलेशन इज इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, वी हैव टू कैलकुलेट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और इसको डिफरेंशिएट कर दे तो 2x माइनस 2। अब हमें कहां पे कैलकुलेट करना था? वी हैव टू कैलकुलेट एक्सलेशन एट x इक्वल्स टू 2। सब्स्टिट्यूट x equals to 2 in this equation, at x equals to 2, a will be equal to 2 square minus 4 plus 1 into 4 minus 2, 4 gone, this will again come out as 2 meter per second square। ये ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा आएगा, ये बाय चांस है कि जो इसका टाइम में वैल्यू आ रही है, the same value is coming in terms of position also। जिन लोगों को डिफरेंशिएशन का कुछ भी हवा नहीं लगी, वो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, आई विल सी व्हाट आई कैन डू। एक हम एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे, एक प्रैक्टिस क्लास कर लेंगे, समथिंग इज रिक्वायर्ड, क्योंकि उसके बिना आगे प्रोसीड करना इज लाइक आंख बंद करके हवा में तीर चलाना। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर इवन द बायो किड्स, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट इज ओनली दैट इट इज समथिंग न्यू। और नई चीजें सीखने में थोड़ा पेन लगता है, चाहे आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा हो, चाहे आपने खुद चलना सीखा हो, चाहे कार ड्राइव करना सीखा हो। Any new thing is little painful initially. Once you get used to, it becomes autopilot। फिर आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा फॉर्मूला क्या था, देखते ही आंसर मिल जाता है। वो इनिशियल वाला एफर्ट, बट दैट हैज टू बी देयर, उसका कोई और सोल्यूशन नहीं। सॉरी टू से दैट, कि कोई जादुई फॉर्मूला हो कुछ ऐसा। ठीक है गोविंद, अंडरस्टूड द पॉइंट। ये फिजिक्स के हर सब्जेक्ट की डिमांड है, जब आप नए टॉपिक नए क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में जा रहे हैं, पुराने सारे लेक्चर को एटलीस्ट अच्छे से समझ के जाएं। डाउट है, यू आस्क मी, यू आस्क एपी सर, आप टीचर से बोलो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की, इट इज नॉट लाइक स्कूल की हम डिलीवर करते जा रहे हैं, हमारा सिलेबस होता जा रहा है, बस उससे आगे का कोई मतलब नहीं है। दिस इज नॉट लाइक दैट, है ना? यू हैव कम हियर, enrolled here to take the
help in understanding जो शायद स्कूल में समझ नहीं आता है या समझाया नहीं जाता, both the cases may happen. तो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ट्राई कि अगर आप पीछे डिफरेंशिएशन से देख के आप फॉर्मूलाज देख लो एंड ट्राई टू फिगर आउट कि क्या हो रहा है, बिकॉज इट इज वेरी इम्पोर्टेंट. और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे वाले ही आते हैं, वो 9th वाले टाइप के इक्वेशन वाले नहीं आते अनफॉर्चुनेटली. A particle moves on a straight line such that its product of acceleration and velocity is constant. The distance moved by particle in time t. अब ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, दिस इज जस्ट न्यू सिचुएशन गिवन. एक पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है. डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन टाइम t इज इक्वल टू 3/2 समथिंग. सो व्हाट वी डू नाउ, हमें इसकी इक्वेशन फॉर्म करनी है जैसे हम छोटे क्लास में करते थे. कुछ इक्वेशन लिखी होती थी, सम इंफॉर्मेशन इज गिवन, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू मेक अ इक्वेशन. उसको हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बोलते थे, कुछ कुछ वैसे ही है. Given that acceleration and velocity is constant, product is constant, acceleration into velocity is constant. Let's say that constant is c. अब हमें a को लिखने के दो ऑप्शन है, हम इसको dv by dt भी लिख सकते हैं और v dv by dx भी लिख सकते हैं. कौन सा वाला यहाँ पे यूज करेंगे? Because it is asking distance in times of t. So we should introduce t by using acceleration as dv by dt into v is equal to c. ये आ जाएगा v dv is equal to c times dt. This is some differential relation. ये क्या है? dv, a very small change in velocity in a small time of dt. इसको हम इंटीग्रेट करते. हमने इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस किए थे, आई होप सो. वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैलकुलेट करना. Did we do that in the last class? अगर किसी ने रिवाइज किया है, हाँ, अगेन दैट्स अ इंपॉर्टेंट कंडीशन. सर आपने भी क्या बोला, रिपीट कर सकते हैं? मतलब सुना ही नहीं पड़ा या समझ नहीं आया? सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया. क्वेश्चन समझ में नहीं आया. मैंने ये पूछा अभी, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, इसके लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है. ये हमने किया हुआ है. आई आस्क्ड डिड वी कवर, अगर हमें वेलोसिटी गिवन है और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो. डिड वी डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? दैट आई आस्क्ड कि हमने इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस किए हैं या नहीं किए हैं. Yes, sir. वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट, राइट? Yes, sir. वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है. एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है? What do we get on integration of acceleration? Sorry, integration. Is it velocity? Check again. Change in velocity, sir. Change in velocity, because when we apply the limit, it will always be change in velocity. Correct? Change in velocity, because हमेशा हम इंटीग्रेशन में लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. So that's why it requires the final minus initial the limit, और लिमिट लगाने पे. So जब हमें ऐसा, ये कैसे किया था हमने? Since v is equal to dx by dt, we cross multiply it. dx, very small displacement, becomes v dt, and then we integrate this. तो this type of relation is called differential relation. इससे dx से x बनाना है या dt से t बनाना है, then we need to integrate. So such relation we got here. Now integrate on both the side. But I didn't understand that. What? Like, when do we decide when to integrate? See here, dv is what? A very, very, very small change tending to 0. dt is a very, very small time. और हमें किसके टर्म्स में निकालना है? टाइम. dt से t कैसे मिलेगा? इंटीग्रेट करके. Okay, sir. Integration of dx was, Rashid, integration of dx is X square by 2.
x तो नहीं है ना यहाँ पे, it will be only x. How? इसको हम लिख सकते हैं 1 is x to the power 0 and then 0 plus 1 divided by 0 plus 1. So integration of dx is x, integration of dt is t. So small change में अगर हमें वैल्यूज पता है और हमें x निकालना है, dt से t निकालना है, dv से v निकालना है, something like that, then we need to do the integration. समझ आ गया कैसे पता पड़ेगा इंटीग्रेशन करना है? जैसे यहाँ पे dx था, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इंटीग्रेट कर लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ v dt. फॉर एनी स्मॉल इंटरवल, स्मॉल चेंज अगर हमें वैल्यू पता है और हमें फंक्शन कैलकुलेट करना है, then we need to do the integration. पहले हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना पड़ेगा, and that's why this integration is complicated than maths. maths में साफ साफ लिखा होगा, okay, integrate sin root x, खत्म. You don't have to think कि हमें इंटीग्रेट करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है, क्यों डिफरेंशिएट करना है या क्यों इंटीग्रेट करना है. In physics it is like application, so you have to think whether we need to integrate or we need to differentiate. That's why physics is a bit more interesting, or you can say a little more challenging. Given acceleration velocity product constant, that's given. How do we know that we have to put a as dv by dt? Because it is asking in terms of time. Substitute v dv by dt. Now v and dv are the same variable. Keep it on the one side and multiply dt on the other side. dv से v चाहिए, dt से t चाहिए, तो हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया. इंटीग्रेशन किसके ऊपर करते हैं? जो भी ये वेरिएबल d के अंदर लिखा होता है, लाइक राइट लेफ्ट हैंड साइड इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v, on the right side it is c is constant, c को बाहर निकाल लेते हैं, it will be integration of dt. So is this clear? Is this clear? इस स्टेप तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बेटा यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. गोविंद, आयुष, Yes, sir. गोविंद चलेगा क्या? Yes, sir. Hello, am I audible? अभी आई आवाज. कह रहा हूँ ये समझ आ रहा है, कुछ कुछ आ रहा है. डिफरेंशिएशन में भी जूम कर लो, मैं साथ में दिखाता जाऊंगा कि हमें कहाँ क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला. इंटीग्रेशन के लिए भी सिमिलरली, बट इन फॉर्मूलेस की एक फॉर्मूला शीट बना लो और उसको लर्न कर लो, बाय हार्ट कर लो, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी हर एक क्वेश्चन में. इधर टाइम है, सो 0 से t तक इंटीग्रेट करेंगे, और लेफ्ट साइड में वेलोसिटी है, तो 0 से v इंटीग्रेट करेंगे. v का इंटीग्रेशन क्या होगा dv के रेस्पेक्ट में? इंटीग्रेशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू dv इज, गोविंद आई एम आस्किंग यू, Yes, sir. v का इंटीग्रेशन क्या होगा? फॉर्मूला ऐसा होता है, अगर पावर n हो तो ऊपर n+1 डिवाइड बाय n+1. व्हाट इज द पावर हियर? 1. Yes, sir. क्या आएगा इंटीग्रेट करने के बाद? फॉर्मूला लिख दिया बेटा मैंने, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला बस अप्लाई करना है यहाँ पे. फिर पावर की वैल्यू सिर्फ वहां पर लगा देंगे. हाँ तो आएगा क्या यार, डरो मत, गलत ही होगा. v पावर n is 1, n is 1 ना. Yes, sir, तो 1 लगा देंगे सर n की जगह. हाँ तो आएगा तो क्या x इंटीग्रेट x की पावर 2 और सर नीचे n+1 है, तो सर अपॉन 2. हाँ तो यहाँ पे x नहीं था, यहाँ पे v था, इसलिए v स्क्वायर बाई 2, लिमिट फ्रॉम 0 टू v. c कांस्टेंट, dt का इंटीग्रेशन t अभी लिखा मैंने साइड में, इसमें भी लिमिट लगाएंगे 0 से 2. मैथ्स में हम बिना लिमिट के इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट फिजिक्स में कभी भी नहीं कर सकते, बिकॉज फिजिक्स में हमें एक्चुअल वैल्यू, रियल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, नॉट जस्ट अ फंक्शन. सो व्हेन वी इंटीग्रेट लेफ्ट साइड, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पे वैल्यू निकालते हैं, दैट इज द मेथड ऑफ. सो ये लेफ्ट साइड में बन गया v स्क्वायर बाय 2, और राइट हैंड साइड में आ गया c टाइम्स t. v स्क्वायर इज 2ct, v इज √2c टाइम्स √t. अब हमें वेलोसिटी निकालना होता है, तो इस क्वेश्चन में सीधे लिख देते हैं वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल रूट ऑफ t. इसको k मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज अनदर कांस्टेंट.
k, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, so we assume that is another constant k, right? अगर इस क्वेश्चन में पूछता how does velocity depend upon time, then we would have written an answer v is proportional to root t or t to the power half, right? Yes, sir. अब लेकिन इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस, गोविंद, यस सर। तो मेरे पीछे पड़ गए हैं। v velocity is in terms of distance, कैसे लिखते हैं? पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज dx by dt। सर dx upon dt सर वह फार्मूला होगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस लिखा फिर भी हम, क्योंकि वेलोसिटी इज रूट t एंड रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यस सर। है ना? तो वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है। सर वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, इस करके k लगा देंगे सर वहां पे। हाँ हाँ बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली। सो हमने लगा दिया वहां पे k, एंड नाउ वी आर अगेन फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि x एक साइड रखेंगे और t dt को एक तरफ, दिस बिकम्स अनदर डिफरेंशियल रिलेशन। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं बोथ साइड, क्योंकि हमें dx से x चाहिए और dt से t चाहिए। So we will differentiate that again, and in that differentiation we will again put the limit left side पे x के ऊपर और right side में time के ऊपर। It's not difficult, but ये आपके लिए नया है क्योंकि आपने पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं किए। अभी जब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन तो वो सब वही 9th वाला है, v is equal to u plus at is equal to ut plus half at square. So if we integrate this, integration of dx limit from 0 to x, right side में k constant, integration of root t dt and limit will be from 0 to t। इसका इंटीग्रेशन आपको अपने आप करना है। Sorry, yeah, what will be this integration? root t की 2 पावर minute. कितनी होगी? root t means power is yes 2 into t raised to power 3 by 2 upon 2. Sorry, upon 3. upon 3, right? Govind, यस सर। गोविंद, यस सर। सर आपको आवाज नहीं आ रही? अब आ रही, बोलोगे तो आएगी, बोलोगे नहीं तो कैसे आएगी? सर बोल रहा है सर, अब आप सुन नहीं पा रहे हैं। म्यूट हो गए शायद, हाँ पता नहीं, और भी किसी को नहीं आई शायद। लैग सर। dx को इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx? सर अगर हम यहाँ पे सर dx मतलब इंटीग्रेट ना करें सर, इंस्टेंटेनियस सर जो एक्सेलरेशन है सर वहां से उसकी वैल्यू निकाले सर, वो भी काम कर सकता है। अरे भाई क्यों क्यों ऐसा करना है? dx से क्या कर ले हम? फिर से सर बोलो। dx को सर v into dt लिख लें। फिर भी तो dt आ गया, फिर dt को t कैसे बनाओगे? हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन समझो, पूछ रहा है कुछ और, तुम डिस्टेंस तो कैलकुलेट करनी है ना। dx को v बना दोगे तो फिर से वेलोसिटी बन गई, क्या फायदा हुआ? dx क्या है? स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम dt। हमें डिस्टेंस निकालना है तो dx को ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। dx को किसी और से रिप्लेस कर दोगे तो डिस्टेंस थोड़ी मिलेगा। यस सर। dx से क्या प्रॉब्लम है गोविंद? स्मॉल डिस्टेंस इन टाइम और t। स्मॉल डिस्टेंस इन टाइम dt, जब टाइम छोटा तभी तो डिस्टेंस छोटा है, इज dx। अब इसको हमें करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के लिए dx पे 0 to x, और dx का इंटीग्रेशन होता है x, और रूट t का इंटीग्रेशन फिर से आप उसी फॉर्मूले से अप्लाई कर लेंगे। dx का इंटीग्रेशन x 0 to x, k कांस्टेंट, t रेज़ टू पावर हाफ को इंटीग्रेट करेंगे तो पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। कोई शॉर्टकट या दूसरा मेथड जबरदस्ती निकालोगे तो वो गलत ही होगा, इसलिए ऐसा नहीं करना। फिजिक्स में ऐसा नहीं चलता है यूजुअली कि कोई शॉर्टकट ट्रिक हो। केमिस्ट्री में होता है, इधर O लगाया, इधर O, इधर H, इधर H,
पानी निकल गया। एक्चुअल तरीका ये नहीं, एक्चुअल में तो मैकेनिज्म होती है, द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, बट वो प्रोडक्ट निकालने के लिए कुछ शॉर्टकट तरीके होते हैं, बट आई डोंट बिलीव इन शॉर्टकट। अच्छे से सही तरह से मेथड समझोगे तो हर एक क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल, राइट। अभी यहाँ तक बताओ क्या समस्या है बेटा? इसका टाइम थोड़ा हम स्लोली करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा सिलेबस ठीक ही चल रहा है, बट दुर्घटना से देर ज्यादा बेटर होती है। मिस्टर अर्नब शर्मा हो मैदान में? अर्नब नॉट हियर, व्हाई नॉट, पता नहीं। ओके भव्या, मुझे एज्यूम्पशन बेस्ड चलना पड़ता है कि समझ आ गया है, बिकॉज रिस्पॉन्स तो मिलता नहीं है। गोविंद क्या है आंसर? सपोज 0 to s कर पहले लो। वाले स्टेप सभी कैलकुलेट कर रहे हैं सर, मैंने अभी आंसर पे नहीं पहुंचा। अरे मैंने कर दिया, बस यही स्टेप आंसर है, अगला स्टेप लिखो तो s minus 0 k 3/2 ऊपर आएगा, 2/3 आ गया, t to the power 3/2, 2k/3 तो कांस्टेंट है, so distance covered is proportional to t raised to power 3/2, that is the answer. It's fine if तो we write x instead of s, right? हाँ ठीक है, तो मैंने s इसलिए दिया कि हम डिस्टेंस के लिए शायद s वर्ड यूज किया था, so we can write distance, we can write x also, but x usually we prefer for position, so that is why I changed it to s. So Yes. बट आगे समझ में डाउट है किसी को? Understood? yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. Okay. नई चीज है, obviously it demands practice more than the class. आपको खुद बिना डरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. Okay, question number third. Question number third. A particle moves along a straight line. The relation between position and the particle is given as this. Find the acceleration of the particle at x equals to 2 meter. Sir, 2 नहीं करेगा. अब बेटा 2 क्यों नहीं कर रहे अभी? 2 नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे लेवल अप करते हैं, क्यों एकदम से डर जाएंगे सारे बच्चे. ओके सर. पहले गियर 1 में चलाते हैं. पार्टिकल इज मूविंग, टू होमवर्क में कर लेना, तो पहले डिस्कस कर लेंगे, अभी थोड़ा माहौल बनने दो पहले. यस, ये थोड़े टिपिकल वाले, हमने शायद जो पहले एक्सरसाइज की थी उसमें जो वर्कशीट थी उसके सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, या उसमें कुछ बचे हुए हैं? क्योंकि उसमें भी एक दो टेढ़े मेढ़े थे कुछ. डिड यू फिनिश दैट, द असाइनमेंट ऑन स्ट्रेट लाइन? तो मुझे बता दिया करो, मैं भूल जाता हूँ. यस, डिड यू फिनिश दैट असाइनमेंट, या उसके कुछ बचे हुए हैं अभी मोशन स्ट्रेट लाइन वाले? तो उसके बच्चे सब बचे हुए, तो हम पहले उसके करते हैं, बिकॉज दैट वाज द लेवल 1, this is level 3 kind of. Just a second, I will just relate to this tablet. हाँ, so we'll come back to this. अभी छोड़ दो, अभी के लिए आप थर्ड क्वेश्चन यहाँ का छोड़ दो, पहले उसमें कुछ थे और क्वेश्चंस, we will first finish that. The fear of unknown makes sometimes very challenging. So physics में भी ऐसे ही कुछ है, डिफरेंशिएशन कभी पढ़ाई नहीं, वो अननोन है, इसलिए वो थोड़ी चीज टेढ़ी बड़ी लगती है.
Okay, I think ये initial वाले questions कर लिए थे हमने. We did this fourth question. We did that. Yes. तो क्वेश्चन 10 के Okay. बाद से करना हाँ. क्वेश्चन 10 के बाद से 10th के बाद के. Okay. Okay, fine. ठीक है, फिर ये 11 भी 10th कर लिया था 11 भी कर लिया था. एक्सेलरेशन में थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे. दिस इज CTQ. आप करेक्ट कर लेना. इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा. लीव इट. आई एम जस्ट कमिंग टू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. ये उसी के जैसा क्वेश्चन है जो हम वहां पे करने वाले हैं, बट दिस इज लिटिल. में CT स्क्वायर होगा या CT क्यूब? CTQ होगा बेटा, तब आंसर आएगा. ओके तब सर. आंसर आएगा. आई थिंक B ऑप्शन विल बी द आंसर. नहीं, B नहीं, C ऑप्शन विल बी द आंसर. CT Yes, स्क्वायर के हिसाब से कोई आंसर था नहीं, वो टाइपिंग एरर है. सिमिलरली यहाँ पर ये √3 is only root is only on 3. There is some typing error. Okay. So yes, question number 12 का आंसर तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे. दिख ही रहा है साफ साफ. C. इनको नहीं दिख रहा है वो आराम से एक बार कर लेंगे होमवर्क में. Question number 14 देखते हैं. This is little tricky one. The relation between time and distance x is given as t is equal to ax square plus bx. A and b are constant. Find the acceleration. क्वेश्चन करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बट हमें हमेशा वो मेथड यूज करना है जिससे क्वेश्चन जल्दी से हो जाए, लेस टाइम कंज्यूम, एंड चांसेस गलती होने के कम होते हैं अगर हमारे पास स्टेप्स कम है तो. अर्नव दरियानी. यस सर. बेटा क्वेश्चंस हो रहे हैं नूतन के? यस सर. ओके, एनी डाउट? नो सर. अच्छा, और ये सारे क्लियर हो रहे हैं ना जो हम पढ़ रहे हैं? एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल? यस. अब देखो इसमें क्या है, इसमें पंगा ये है कि इक्वेशन इज गिवन t in terms of x. राइट? अब इसमें हम क्या करें, कैसे करें? क्या करें बताओ? हाउ शुड वी डू? एनी आइडिया? एनी आइडिया व्हाट शुड डू? एक तरीका क्या है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, सो हमें पोजीशन को या डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिस्प्लेस करना है, हम लोग दो बार डिफरेंशिएट करना है. सो अदर देन दैट व्हाट वी कैन डू इज हम इसको एक तो एक्स में क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करके एक्स निकालो, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लेते हैं. डिफरेंशिएट ऑन बोथ दी साइड using with respect to t, on both side with respect to t. इस क्वेश्चन को हम दो तीन मेथड से करके देख सकते हैं अगर आप चाहो तो, बट अदरवाइज d by dt of t. और सबसे अच्छा मेथड वो होता है जो एग्जाम में स्ट्राइक कर सके. तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर क्वेश्चन के लिए एक यूनिक मेथड होता है. जो भी आपको एग्जाम में स्ट्राइक कर जाए, दैट इज द बेस्ट. अब इसके लिए हमने कुछ पढ़ा था ऐसे क्या, जब ये वेरिएबल t है और फंक्शन में x है तो t में कर नहीं सकते, इसलिए हम इसको dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड, व्हिच वाज कॉल्ड चेन रूल. अगर अभी भी आप चेन रूल से कंफर्टेबल नहीं तो हम ऐसे पहले वेरिएबल चेंज करके लेफ्ट साइड में तो आ गया 1, बिकॉज़ t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2ax, bx का हो जाएगा v, एंड dx by dt इज वेलोसिटी. देखो अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, dx by dt यानी वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई. v is equal to 1 upon 2ax plus b. Right? This is equal to velocity. अब we have to find acceleration. तो दोनों तरीके में हम कुछ भी कर सकते हैं, dv by dt भी कर सकते हैं और v times dv by dx भी कर सकते हैं. So let's say dv by dt क्यों ज्यादा इजी है हमारे लिए याद करना. Acceleration is dv by dt. So we differentiate d by dt of 1 upon 2ax plus b.
अगेन प्रॉब्लम, वेरिएबल है x का, डिफरेंशिएट हम d में कर रहे हैं, सो हमें dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड करके इसका पहले वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, dx by dt 1/2ax plus b डिफरेंशिएशन। अब ये थोड़ा सा चेन रूल वाला है, 2x plus b को हम कुछ x जैसा अज्यूम कर लेते हैं, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर, और फिर जिसको हम x की जगह अज्यूम करते हैं उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना होता है। आई होप यू रिमेम्बर दिस। और साथ में एक dx by dt भी था, इनटू dx by dt। आराम से पहले यहाँ तक देखो, चेन रूल अगर याद नहीं है तो अभी भरोसा रखो। 2x plus b को हमने x जैसा फंक्शन एज्यूम कर लिया, और 1/x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x स्क्वायर, फिर जिसको हम x एज्यूम करते हैं उसको डिफरेंशिएट करके फिर से मल्टीप्लाई करना होता है। दैट वाज द मेथड, दैट वाज द रूल। So what we did here is we assume 2x plus b as capital X और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई। अब ये जो टर्म आ गया यहाँ पे, दिस टर्म हाँ बेटा, Why did you follow chain rule again in the part that you just highlighted? क्योंकि 2x plus b को डिफरेंशिएट करना है। 2x plus b is not a standard function, standard function is x। देखो पहले तो यहाँ पे वेरिएबल चेंज किया कि t है अंदर x है, तो ये तो एक अलग केस हो गया। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट 1/2ax plus b with respect to x। So 1/x is a standard function, x to the power -1 is 2x plus b is not a standard function, तो हमने उसको एक अलग फंक्शन एज्यूम कर लिया है, लेट्स से कैपिटल X। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर, so 1/2x plus b is -1/2x plus b स्क्वायर। जिसको x एज्यूम करते हैं उसके डिफरेंशिएशन से फिर से मल्टीप्लाई करना होता है। बोलो। Okay. ओके ठीक है। सो आई होप चेन रूल थोड़ा अभी उतना कंफर्टेबल नहीं है, आप चेन रूल को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। मैंने इसलिए एक्सरसाइज दी है, 1 DPP is there for the name of physics and maths that we will solve in the Friday class। so Friday से पहले आप उसके सारे कॉन्सेप्ट जो हमने क्लास में एग्जांपल किए थे, एटलीस्ट दोज यू शुड रिवाइज। ये आ गया 2ax plus b स्क्वायर, ऊपर डिफरेंशिएट करोगे तो 2a आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, और इनटू dx by dt इज वेलोसिटी v। ये dx by dt तो v बन गया, -2av and 1/2ax plus b का होल स्क्वायर, and 1/2ax plus b is equal to v, so we will substitute this by v। v is the velocity, so it comes out -2a, v ये था और एक v स्क्वायर और आ गया, -2a times v cube। First option is the answer and this is the JEE question। ये बहुत पहले कभी JEE में आया हुआ क्वेश्चन, JEE में भी आ चुका है और नीट में भी आ चुका है। मोस्टली ऐसा ही ट्रेंड होता है, जो IITs में 80 IIT के पेपर में 80-90 में आते थे, वो नीट के पेपर में या AIPMT होता था तब 2000 की, सो ऑलमोस्ट 20-25 इयर्स बैक क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते थे। अभी इधर 2 साल से कुछ भी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, बिकॉज न्यू एजेंसी NTA is taking the tests and they have using their own question bank। Okay। थोड़ा तो टेढ़ा है, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स पीस ऑफ केक, इसीलिए थोड़ी कंसंट्रेशन भी चाहिए, थोड़ी कंसिस्टेंसी भी चाहिए, you need to work on। right। yes
अरे बेटा समझ में आया नहीं आया कोई बताएगा? सर आ गया। सर आ गया समझ। मिस्टर गोविंद, चलो वेरी गुड। वेरी नाइस, ठीक है आगे बढ़ते हैं अगर किसी को कोई डाउट नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं इसलिए मैं थोड़ा इनको ज्यादा एम्फेसिस कर रहा हूँ। Yes, next is this question number 20. Question number 20 and 19. पहले 19 करते हैं चलो। ये 19 जैसा क्वेश्चन है वैसे ही पीछे क्वेश्चन था वहां पे भी x square. The displacement of a particle moving along straight line path is given as x square is at square plus 2bt plus c. Physics is I mean like numerical oriented, इसलिए हमें numerical ही solve करना है। Don't feel that आज की क्लास में तो हमने कुछ पढ़ा नहीं। किसी बच्चे ने पूछा था सर आज खाली क्वेश्चन कराओगे, तो मैं नहीं ज्वाइन करता हूँ। लर्निंग इज थ्रू द क्वेश्चन, थ्योरी तो हर कोई पढ़ लेता है। और अनफॉर्चुनेटली आपने न्यूमेरिकल को ढंग से 10th में कभी देखा ही नहीं। विदाउट योर फॉल्ट, एक्स स्क्वायर इज गिवन एज at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, लेकिन अगर x होता तो दो बार डायरेक्ट x को दो बार करने पे हो जाता ना, यहाँ तो x स्क्वायर है। एक दो तरीका है, कुछ बहुत खतरनाक सा फंक्शन बना है रूट ऑफ at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c, और फिर चेन के अंदर चेन, इसको दो बार डिफरेंशिएट करें। दैट इज वन मेथड व्हिच आल्सो इज डिसेंट इनफ, ये बहुत लंबा नहीं है। दूसरा तरीका थोड़ा सा ट्रिकी, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। अब एग्जाम में आप ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, एग्जाम में आपको पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या करना है, और एग्जाम में हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसी डिलेमा में आधे लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते कि हम क्या करें, रूट लें या डिफरेंशिएट करें। फिर एक्स स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में राइट हैंड साइड इट कम्स आउट differentiation of at square plus bt plus c. This is one approach, but we are not doing that. x square का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 2x dx by dt, वही मतलब dx dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। अब तक कंफर्टेबल होगा इसलिए मैंने जल्दी एक स्टेप में कर दिया। at स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2at और bt का आ गया b। dx by dt is velocity which comes out to 80 plus, sorry, it was 2bt na, so it will be 2, it was 2bt plus c, so that become 280 plus 2b, 2 कॉमन कर लेते हैं, 80 plus b divided by 2x, 2 gone, velocity is 80 plus b divided by x। अभी ये वेलोसिटी आई है, लेकिन हमें एक्सेलरेशन निकालना है। We differentiate this with respect to t again। पहले इस स्टेप तक किसी को प्रॉब्लम? हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के थोड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस कर रहे हैं जैसे एग्जाम में आते हैं। सो अगर आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा है इट्स कंप्लीटली फाइन, बट व्हेन यू सी द सॉल्यूशन यू शुड अंडरस्टैंड इट, और इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा आपको बिना सॉल्यूशन देखे करना है। दैट इज द ओनली होमवर्क आई एम गिविंग एवरी क्लास मिनिमम, DPPs and all, because I know अभी आपने just 10th से 11th में कदम रखा है, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सीरियसनेस आने में। राइट,
बेटा क्लियर, ये समझ आ गया? Yes, sir. आगे इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब फिर से डिफरेंशिएशन में पंगा फंस जाएगा, क्योंकि ये क्या है, डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा अपने को। एक्सेलरेशन इज dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट बिकम d by, तो अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है, आप सामने नोटबुक रखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एटलीस्ट साथ साथ देखते जाओ, समझते जाओ। इसका क्या था डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला फॉर एनी डिवीजन ऑफ फंक्शन, d by dx of f by g, denominator into differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator divided by denominator square. यहाँ पे g है x, f is at plus b minus at plus b into differentiation of x divided by x square. Understood this formula? F by g into df by dx minus f into dg by dx divided by g square. ये हो गया x, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बचेगा केवल a, t का डिफरेंशिएशन 1 और b का 0, माइनस at प्लस b, और dx by dt क्या है, dx by dt is velocity, velocity is at plus b divided by x, at plus b का स्क्वायर बन जाएगा काइंड ऑफ at plus b divided by x. ये एक्सेलरेशन है, थोड़ा काट में देना a on both side. हम एक्सेलरेशन को कुछ और नाम भी दे सकते हैं. This side is f, just for the acceleration we are denoting here by f, small f. नहीं तो ये a कट कर सकते हो, divided by x square. Okay, check in this step. Any problem? Yes. No, sir. Understood? Yes. बेटा और किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछ लो. एनी स्टेप नॉट क्लियर? गोविंद कुछ आ रहा है? यस सर, बस थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम हो रही है, बट वो मैं रिवाइज कर लूंगा सर आज के दिन ही. आज के दिन निकल लेना, एब्सोल्युटली. आउट ऑफ सेशन तो सर मेरी एक्चुअली आधी क्लास मिस हो गई डिफरेंशिएशन की सर, इस वजह से पहले रिकॉर्डिंग देखने की ट्राई की थी, बट बाद में देख नहीं पाया था. अच्छा, रिकॉर्डिंग्स देख नहीं पाए आप इसलिए. ओके, अब इसको हम इधर आगे कॉपी कर लेते हैं, देन वी सॉल्व इट फर्दर. द डिफरेंशिएशन f इज, इधर था x into a, जब एलसीएम ले लोगे मेरी तो प्रीवियस a, स्लाइड पे जाना सर, लास्ट लाइन पे सर. ये तो बेटा फॉर्मूला है, ये मत कॉपी करना, ये तो फॉर्मूला लिखा था मैंने. ax माइनस स्क्वायर अपॉन x, नीचे बन जाएगा x क्यूब. इसका एलसीएम ले लिया, माइनस at प्लस b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब, ऐसा कुछ. सर डन.
राइट, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2abt प्लस ac, इधर ओपन कर लो, a प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab divided by x cube. Sorry, it's not a cube, this was x cube. a square t square gone, 2abt gone, ऊपर बच गया ac minus b square और डिनोमिनेटर में आ गया x cube. This is the acceleration. ac and b constant है, so acceleration is proportional to x to the power minus 3. Acceleration is proportional to x to the power minus 3. Right? Yes, sir. How much? Yes. Okay, done. ऐसे एक अगला क्वेश्चन है वो आपको करके दिखाना है अभी. This question number 20 is almost similar but relatively simpler in terms of calculation. इतना भी लग रहा है बिकॉज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. जब आप प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे वर्कशीट पर, वेरी इजी. डोंट गेट स्ट्रेस्ड कि क्या है, पता नहीं क्या हो रहा है. हर नई चीज के साथ ऐसा होता है, सो इट्स ओके. एग्जैक्टली सिमिलर, थोड़ा और सिंप्लीफाइड है एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 19. सॉल्व. ये शायद मल्टीपल चॉइसेस में 2 ऑप्शन होंगे, मोर देन वन करेक्ट आंसर. ट्राई दिस exactly the same way. Sir, बेटा sir, is the answer A? A. Yes, sir. Yes, that is A, and there is one more answer. There's one more answer. Okay, A. sir. Second. So D. A is the answer, yes. But A के अलावा एक और answer इसमें Sir, I correct है. said D. B. D. D, yes, yes. D is the correct answer, absolutely. D for Delhi. Differentiate this again.
Differentiate without solving. एक तरीका root लेके भी कर सकते हैं. In this case, that root is also easy, but differentiate with respect to t. So d by dt of x square 1 का 0 और t square का आ जाएगा. So 2x times dx by dt is equal to 2t, 2 to 1. Dx by dt, which is nothing but velocity, is equal to t by x. V is equal to t by x. Acceleration is dv by dt, and that becomes d by dt of t upon x. X into differentiation of t minus t into differentiation of x with respect to t divided by x square. T का differentiation तो 1 हो गया. This will come out a is equal to x minus t. Dx by dt is t by x upon x square. तो एक तो तरीका यहाँ से इसको अलग अलग कर लोगे तो 1 upon x minus t square upon x cube, which is d option. If you take LCM, it becomes x square minus t square upon x cube, and x square minus t square is equal to 1. So 1 upon x cube. It will have these two answers, 1 by x cube or 1 by x minus t square upon x cube also. Right? आगे आंसर ये 1 upon x cube. Yes, sir. So 1 upon x cube कैसा आया? X square minus t square को 1 put कर दिया. X square is given as 1 plus t square. Oh, okay. That is 1. Okay, sir. Yes, done. Yes, sir. क्या किसी को डाउट इसमें? Anyone? No? Very good then. ओके, तो ये डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस हैं. इनमें कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है. वी हैव टू डू बाय हिट एंड ट्रायल. जैसे इसका एक दूसरा तरीका क्या हो सकता था, हम x स्क्वायर को से x कैलकुलेट कर लें. द अदर मेथड इज x विल बी रूट ऑफ प्लस t स्क्वायर. वेलोसिटी निकालने के लिए dx by dt, d by dt. This is not necessarily a best method. इसको डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से, तो 1 upon t and this into d by dt of 1 plus t square. It will be quite lengthy. That's why t square का डिफरेंशिएशन आएगा 2t और नीचे का आएगा 2 into root 1 plus t square. Then this is v, और फिर हम v से a निकालेंगे dv by dt और फिर t को x में रिप्लेस करेंगे. So I don't want to waste time. You can see this method which is very straightforward to strike. आपको ये strike तुरंत कर जाएगा कि हम x कैलकुलेट करें, फिर हम x से differentiate करें and we get velocity from velocity to. But the problem is that you will not be able to solve this. This is very complicated.
Clear? Yes, sir. ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन हम इसके वाले भी कर लेते हैं, द अदर वर्कशीट तो पहले स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर ये था थर्ड क्वेश्चन। नाउ यू कैन सी कि इसमें t क्यों नहीं गिवन है, इसमें x गिवन है। दिस विल बिकम समथिंग, सो नाउ यू कैन ट्राई if you want. Question number third. Question number 3, you have to solve by the similar method as we used in the last question. Sir, 4 meter per second square. 4 meter per second square. Uh, no, it's coming out to be 2 meter per second square. It's coming out to be 2 meter per second square. Should I solve? चलो, x square is equal to 80 square plus 80 plus 4. ये चैप्टर की लर्निंग है, ये मैं समझना कि कुछ टाइम वेस्ट हो रहा है, हम आगे नहीं पढ़ रहे हैं अभी, स्कूल की तरह भाग नहीं रहे हैं सिलेबस खत्म करने के लिए। दिस इज द एक्चुअल लर्निंग, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, राइट? ओके, we can use a similar approach, differentiate both sides with respect to t और फिर हम उसको x में लाके चेंज कर लेंगे। So if we differentiate unarmed writing directly, 2x dx by dt, 8t square आ जाएगा 16t plus 8. So dx by dt becomes 8t plus 4 upon x, right? This is v. So differentiation of dv by dt will become d by dt of 8t plus 4 divided by x. Denominator into differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator divided by denominator square. This becomes 8x minus 8t plus 4 और ये आ जाएगा 8t plus 4 by x divided by x square. Eight x square minus 8t plus 4 whole square.
divided by x cube. 8x square में x square की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दिया. X square is given as 8t square plus 8t plus 4 minus 8t plus 4 whole square divided by x cube. 64t square plus 64t plus 32 minus 64t square plus 16 plus 64t a plus b का whole square divided by x cube. 64t square gone, 64t gone, 32 minus 16, so that becomes 16 divided by x cube. ये आ गया एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला. हमें कैलकुलेट करना था एट x equals to 2, 16 by 8, that is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब अगर आपको ये अप्रोच नहीं पता है कि हमें इस तरह से करना है, तो हम सोचते रह जाएंगे इसमें तो टाइम गिवन है, हम टाइम को कैसे एक्स में चेंज करें. That will seem impossible to solve. Devyani, understood? Yes. Radhika? Yes, sir. इन क्वेश्चंस को दोबारा भी आपको सॉल्व करना है इन होमवर्क. डोंट सी द सॉल्यूशन हियर. आपको इन क्वेश्चंस को दोबारा अपने आप सॉल्व करना है. ओनली देन यू विल लर्न. ओनली देन यू विल लर्न बेटर. लर्न तो शायद अभी हो गया होगा थोड़ा बहुत. ओके, ठीक है. मुझे सिलेबस खत्म करने की जल्दी नहीं है, बट इट हैज टू बी डन इन द वे. सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है 11th and 12th because this is a previous year question only in both the worksheet. राइट, ठीक है. तो अभी हम थोड़ा और आगे कर लेते हैं. एक्सेलेरेशन से इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन. इंटीग्रेट करके वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो पोजीशन मिलता है. पोजीशन को एक्सेलेरेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है. आई थिंक वी डिड क्वेश्चंस फ्रॉम द फर्स्ट वर्कशीट. जैसे इसमें क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया था हमने लास्ट क्लास. 16 वाज डन. 16th नहीं किया हमने शायद. क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं अभी. दिस इज a particle is moving under constant acceleration. A is equal to alpha t plus beta t square. Alpha beta constant. Position and velocity at time t is equal to 0 is x naught and v naught. The expression for the position of particle is as shown. So do we need to integrate here? Yes, because acceleration given है और position निकालना है. In fact दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा. पहले एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी. फिर हम वेलोसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तब जाके हमें पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. सो वी नीड टू इंटीग्रेट ट्वाइस. ये क्वेश्चन पढ़ के हमें फिगर आउट करना है. एक्सेलरेशन को जब इंटीग्रेट करते हैं देन वी गेट चेंज इन वेलोसिटी. सो यू लर्न दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो हमने आज सबसे पहले किया था. द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड, वी रिकॉल्ड ऑल दीस फॉर्मूलाज. राइट. जब हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट किसको करते हैं? वेलोसिटी को. तो हमें चेंज इन पोजीशन मिलता है. इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन. चेंज इन पोजीशन मींस डिस्प्लेसमेंट. 0 to t we get displacement. When we integrate acceleration with respect to time, we get change in velocity v minus u. In this case, initial velocity is given as v naught, so v minus v naught. 0 to t, acceleration is alpha t plus beta t square times dt. v minus v naught. Alpha t का integration t square by 2 plus beta t square integration is t cube by 3.
right? Correct? Alpha t square by 2 plus beta times t cube by 3. अब इससे हमें वेलोसिटी मिल गई at any time t और as a function of t, alpha t square by 2 plus beta t cube by 3. अब इस वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन पोजीशन मिल जाएगा। हमने वेलोसिटी निकाला एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एट टाइम t। तो ये जो फॉर्मूलेज लिखे हैं साइड में लिखता हूँ बार बार, इनको आपको भी अपनी एक ओन फॉर्मूला शीट में कंपाइल करना है। इस वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन पोजीशन आ जाएगा और इनिशियल पोजीशन इज गिवन एज x नॉट। सो चेंज इन पोजीशन इज इंटीग्रेशन 0 to t v dt x minus x naught 0 to t v naught plus alpha t square by 2 plus beta t cube by 3 plus alpha t square by 2 plus beta times t cube by 3 into dt. X minus x naught, it become v naught times t plus t cube by 3 plus beta by 3 और t cube का इंटीग्रेशन आ जाएगा t4 by 4. X will be equal to x naught plus v naught times t plus alpha t cube by 6 plus beta t4 by 12. Which option is this? First, ये a है बीच में एक equal, sorry, that is x बीच में एक वो अलग से, so again typing error here. This is x. X as a function of t is equal to x naught plus v naught t plus alpha t square by 6, right? X naught plus v naught t plus alpha t cube by 6 plus beta t to the power 4 by 12. So ऐसे हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके चेंज इन वेलोसिटी से वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके चेंज इन पोजीशन, वी गॉट द पोजीशन एट टाइम t. सो आज का होमवर्क यही है कि आप ये दोनों वर्कशीट को दोबारा सॉल्व करेंगे, ऑल द क्लास एग्जांपल्स, सॉल्व इट अगेन एंड रिवाइज डिफरेंशिएशन। और जो 3 डिफरेंट वर्कशीट दिए मैंने, एक ग्राफ के लिए है और इंटीग्रेशन के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए, those DPP also you have to solve. Friday we will first discuss those mathematics one. Right? Okay, that's it for today. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.